صحیفہ فاطمہ میں آیا ہوا ہے. اور صحیفہ فاطمہ ہے کیا؟ آپ سنیں اس بات کی طرف اشارہ کرتے کہ دنیا کیا سمجھتی ہے بی بی سیدہ کو کہ اگر کسی ایک جو ہے ایک دفعہ ملک آ گیا تو ہمارے پاس ایک بہت بڑے عالم دین ہے جن کا نام ہے آلوسی. انہوں نے بہت بڑی کتاب لکھی تفسیر پر. آلوسی نہیں بلکہ کہا جائے تو اردو میں چاپلوسی. صلوات بھیجے آپ اللہ. آپ کہیں گے کہ آلوسی نے کہتے چاپلوسی کی. جناب مریم کے لیے بحث کرتے کرتے آلوسی نے کہا کہ مریم صرف مقدس بیوی نہیں ہے بلکہ میں تو دلیل دے سکتا ہوں کہ نبی بھی ہے. کیا دلیل دیا معلوم؟ انہوں نے دلیل یہ دیا کہ چونکہ آپ کے گھر کے اندر جبرائیل آ گئے لہذا جس سے جبرائیل آ کے بات کر لے وہ نبوت کا درجہ رکھتی ہے. تو میں کہوں گا کہ مریم کے پاس ایک دفعہ جبرائیل آ گئے تو آپ نبی ماننے کے لیے تیار ہیں. بی بی سیدہ وہ ہے، جبرائیل بھی آ رہے ہیں، میکائیل بھی آ رہے ہیں، اسرائیل بھی آ رہے ہیں، میکائیل بھی آ رہے ہیں، وحی بھی آ رہی ہے، الہام بھی ہے، سلام بھی ہے، پیام بھی ہے، سلام بھی ہے، احترام بھی ہے، وحی بھی ہے، سورۃ الملک. یعنی سیدہ کے شہزادی کے باپ میں اتنے فضائل ہیں کہ میں منبر سے عرض کر رہا ہوں کہ 2-3 مجلس میں تو پتہ ہی نہیں چلے گا میں نے تمہید بھی پڑھی کہ نہیں. اگر پورے سال بھر فضائل پڑھ کے صلوات بھیجے آپ سیدہ کے کل بھی تمہید میں ماشاءاللہ 48 منٹ گزر گئے اور آج بھی 48 منٹ کریں تھوڑا سا اور کم کرنا تاکہ وہاں کی مجالس پر اثر نہ پڑنے پائے کہ اتنے فضائل اللہ تعالیٰ نے دیے کہ آپ دیکھیں جہاں پر بی بی سیدہ کا نام لیا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فضائل کے سلسلے میں ایسی انوکھی بات کی ہے کہ منبر سے چیلنج ہے پورے قرآن میں وہ جملہ دہرایا نہیں جو جناب سیدہ کے لیے قرآن میں آیا. بہت فضائل کا باب ہے انشاءاللہ عرض کیا جائے گا اور ملا کر کے بھی پیش کیا جائے گا. مریم کیا ہے، شہزادی کیا ہے، آسیہ کیا ہے، شہزادی کیا ہے، حوا کیا ہے، شہزادی کیا ہے، ام موسیٰ کیا ہے، شہزادی کیا ہے، جناب خدیجہ کیا ہے، شہزادی کیا ہے، پہلے کی عورتیں کیا ہے، شہزادی کون ہے، بعد والی عورتیں کون ہے، شہزادی کون ہے. ہم تو شہزادی کے سلسلے میں کہ جب نبیوں کی زوجات جن کا درجہ قرآن نے بتایا ہے ان کو برابر نہیں سمجھتے تو پھر یہ جاہل تھے رسول اللہ کی جگہ پر آگے بیٹھ گئے ان کی بیٹیوں کو کیسے ان کے برابر میں لائیں گے جب حوا کو نہیں لاتے، آسیہ کو نہیں لاتے، مریم کو نہیں لاتے. صلوات بھیجے آپ اللہ. جب یہ بیٹیاں جو قرآنی بیٹیاں ہیں قرآن نے جن کا تذکرہ کیا ہے وہ تو آئی نہیں سکتی برابر میں چونکہ یہ جناب سلمان نے فرمایا اللہ کو ایک اشارہ بھی دے دیا یعنی جتنے یہاں بیٹھے ہوئے انشاءاللہ جو شادی شدہ ہے یا جو شادی کرنے والے سب کے لیے ایک اشارہ دے دیا جناب سلمان نے. آپ کہیں گے کیا اشارہ دے دیا؟ چونکہ جناب سلمان آئے تو بی بی سیدہ نے کہا کہ سلمان بڑے موقع سے آئے تمہاری قسمت. چونکہ جناب سلمان کو اجازت تھی کہ باقاعدہ دروازے پر بھی آئے اور دروازے پر آنے کے بعد شہزادی بلانے تو گھر کے اندر بھی چلے جائیں. اتنے بزرگ تھے منا اہل بیت کہ شہزادی جہاں بٹھاتی تھی آ کے وہاں بیٹھتے تھے. اور پھر جناب سلمان کی عادت یہ تھی کہ جان بوجھ کے داڑھی اپنی بڑھائے ہوئے تھے. حالانکہ ہمارے پاس داڑھی ایک فٹ تھی تھوڑا سا نکل آئے تو یہاں تک صحیح ہے بہت بڑی داڑھی صحیح نہیں ہے. لیکن سلمان سے پوچھا جاتا تھا کہ داڑھی آپ نے اتنی بڑی بڑی کیوں رکھی ہے؟ کہا کہ چونکہ صبح و شام بی بی سیدہ کے دروازے پہ جاتے ہیں ہمیں جھاڑو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے اپنی داڑھی سے میں ان کی دہلیز کو صاف کر کے آتا ہوں. اپنی داڑھی کیا سنا ہے اپنی داڑھی سے ان کی دہلیز کو رگڑتا رہتا ہوں صاف کرتا ہے. ایک صلوات بھیجے آپ بدلا. اور ہماری بھی قسمت ابھی دن بھر میں ہی روایت ذہن میں آ گئی زیادہ خوشی کے مارے میرے بھی آنکھ میں آنسو آ رہا ہے. بہت بڑی روایت آ کے تفصیلی میں تربیات میں لے رہا ہوں کہ جناب سلمان اللہ کو اتنے بزرگ ہیں اتنے پڑھے لکھے ہیں لیکن دہلیز فاطمہ کو خوب سمجھتے ہیں کہ
किया है, लिहाजा बीबी ने कह दिया सलमान बड़े मौके से आज आ गए हो और बड़ी खुशखबरी तुम्हारे लिए है। सलमान ने हाथ छोड़ लिया, सर झुका के खड़े हो गए। बीबी फरमाइए क्या खुशखबरी है? कहा अभी अभी एक जन्नत से हूर आई थी जिनका नाम सलमा है और उसने खुशखबरी दिया है कि मैं तो यहाँ पर आपकी कनीज बन के आई हूँ सलमा, लेकिन जन्नत में मैं सलमान की ज़ौजा बन के रहूंगी, मेरा नाम हूर है। अल्लाह ताला ने दर्जा दिया है। सलमान ने बात को रोक करके फरमाया, एक जुमला हाथ जोड़ करके फरमाया, बीबी जरा ये बता दीजिए कि जो सलमा मेरे नाम से आई थी और मेरी ज़ौजा थी, वो जब आपके घर में आई तो बैठी कहाँ पर? बीबी सैयदा ने फौरन बताया कि मैं तख्त पर बैठी थी, वो मेरे बाकी नबी पर बैठी थी। सलमान मुस्कुरा के कहता है तब हमारी ज़ौजा है, अगर बराबर बैठ जाती तो मैं निकाल लेता अपना घर तरीका है। मैंने इशारा किया था जो शादीशुदा है या करने वाले हैं ये मिजाज होना चाहिए कि ज़ौजा कितना चाहती है बीवी सैयदा को। अभी शादी नहीं, वो जन्नत गए नहीं, अगर बराबर में बैठ जाती तो मैं शादी न करता, मैं जन्नत में कबूल न करता उसे। आपके पास आप यही थे, एक जुमला कहने दीजिए कि जन्नत की हूर आए तो बीवी सैयदा के बराबरी न कर सके। ये कैसी मनहूस औरतें हैं जब ये जन्नत में जाने के बाद तहरा की बराबरी में, खदीजा की बराबरी में, ज़ैनब की बराबरी में जन्नत से हूर आ रही है तो उन पे हिम्मत है नहीं कि बीवी सैयदा के दाहिनी तरफ या बाईं तरफ बैठ जाए, या कोई और जनाबे खदीजा ने भी बहुत अजमत को बयान किया, इंशाअल्लाह कभी अर्ज किया जाएगा। मैं देख भी रहा हूँ घड़ी को और बार बार डर भी रहा हूँ, तकरीबन 40 मिनट हो गए, एक साथ बात भेजा अल्लाह माशाअल्लाह मजलिस राइट टाइम शुरू हो गई तो उसका फायदा हमको मिल रहा है। अगर 10 मिनट भी लेट हो जाती तो थोड़ा सा असर पड़ता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं सोच रहा था कि कम से कम 35-40 मिनट हो जाए, उसके बाद वहाँ का भी सिलसिला रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह करीब पहुँच चुके हैं। एक फदाइल का बाब है, एक फदाइल जो है समंदर है, अल्लाह ताला ने अता किया है, और इतनी ज्यादा फजीलत है कि इस बीवी के जरिए से जो चीजें अल्लाह ताला ने अता कर दिया है, क़यामत तक कोई दबाने वाला नहीं है। एक एक फजीलत बीवी के जरिए से है, और खुद इमाम ने फरमाया है, जिसको आप इमाम ज़माना कहते हैं, हमारा भी इमाम है, आपका भी इमाम है, उन्होंने फरमाया है कि सबके लिए एक उस्मा है और मेरा उस्मा मेरी चद्दा फातिमा है, मेरी दादी हमारे लिए उस्मा है। 11वें इमाम फरमाते हैं कि अना अलैकुम हुज्जतुन, हम तुम्हारे सबके ऊपर हुज्जत है, वह हुज्जतुना जद्दतुना फातिमा, और हमारी हुज्जत हमारी सैयदा फातिमा है, हमारी हुज्जत हर इमामों की। एक सलावत भेजा बहुत ज्यादा है हमारे बात माशाल्लाह, आप भी नाम सुन के सलवात भेज देते हैं, सर झुका लेते हैं, ये इमामों की आदत है। बस यकीनन यहाँ से बहस को मैं काट रहा हूँ, वरना ये जो आयत जो इब्तिदाई कलाम में पेश किया, इसकी सिर्फ तमहीद पेश की जाए तो कई मजलिस हो जाएगी कि बीवी सैयदा के दर की अजमत क्या है, घर की अजमत क्या है, कि आप सुनते ही फौरन सर को झुका लेते हैं, आपके जो है निगाहें झुक जाती हैं, या फौरन सलवात। ये आपकी आदत नहीं है, ये आपने इमाम से दिया, इमामों की आदत है, रसूलुल्लाह की आदत है। रसूलुल्लाह झुक जाते थे, जनाब खदीजा झुक जाती थी, या और इमाम के लिए छठे इमाम के पास ये रिवायत है, एक सहाबी आया, चेहरा उतरा हुआ था, सकूनी नाम है, आया इमाम के सामने, तो इमाम ने सवाल कर लिया, सकूनी आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कहा मौला एक चीज घर के अंदर हो गई, उसी की परेशानी है। कहा हमें बताओ, तुम मेरे सहाबी हो, तुमको परेशान नहीं होना चाहिए। कहा हुजूर ऐसे ऐसे एक लड़की पैदा हो गई है, और लड़की पैदा होने की वजह से बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। तो पहले तो इमाम ने फरमाया, ये बताओ लड़की या लड़का पैदा होना तुम्हारी पसंद है या अल्लाह की पसंद है? जिसको अल्लाह ताला लड़की देता है तो अपनी पसंद से देता है या शौहर की पसंद से देता है? यानी चाहे लड़का दे या लड़की दे, किसकी पसंद होती है?
फौरन हाथ जोड़ के कहा मौला ये तो आया है कि अल्लाह की पसंद हो तो वो देने वाला है, वो इनायत करने वाला। कहा कि बताओ तुम्हारी पसंद चलेगी या अल्लाह की पसंद चलेगी? बड़े मंतकी तौर पर इमाम ने फरमाया। कहा कि यकीनन खालिक है, अल्लाह की पसंद चलेगी। कहा जब अल्लाह ने पसंद कर लिया तो तुमको नापसंद नहीं करना चाहिए। अच्छा ये सारी बातें हो गई। फिर इमाम ने फरमाया ठीक है, लड़की पैदा हो गई, अल्लाह ताला रहमत करा दे, इंशाल्लाह तुम्हारे घर में बरकत आएगी, रोटी आएगी। बड़े फजाइल पढ़े। फरमाया ये बताओ उसका नाम क्या रखा? जैसे ही नाम पूछा सगुनी ने कहा कि हुजूर आपकी चचा के नाम पर फातिमा मैंने नाम रखा। ये कहना था कि हमारे छठे इमाम का सर इतना झुक गया जैसे गोया कोई सजदे में गिर जाए। एक दफा सर झुकाया, फिर दो दफे सर झुकाया, तीसरी दफा सर झुकाया, उसके बाद आंख में आंसू आ गया और फरमाते हैं ऐ सगुनी देखो तुमने नाम ऐसा रखा है, कभी अपनी बेटी को झिड़कना मत और कभी अपनी बेटी को तमाचे न मारना। अल्लाह अकबर। इमाम ने इशारा कर दिया, हाँ मुसीबत की तरफ इशारा हो गया। अल्लाह को अपनी जनता को कैसे कैसे इमाम याद करते थे। नवे इमाम के लिए है, 3.5 साल की उम्र है, सजदे के आदम में जाके तड़प रहे हैं। अरे जैसे ही तड़पना देखा आठवें इमाम ने आगे अपने बच्चे को सीने से लगा दिया। अरे इमाम जवाहर, अरे मेरे फर्जंद आगे तुम इतना रो क्यों रहे हो? कहा कि मैंने नमाज पढ़ करके जैसे ही मैं सजदे में गया मेरी जद्दा फातिमा याद आ गई। अरे कैसे पसलियां तोड़ी गई, मेरी जद्दा की पसलियां कैसे तोड़ डाली गई। अरे हमारा इमाम आ जाए, हाँ इमाम जमाने के लिए आप भी सिर्फ नहीं याद करते, अरे बल्कि मेरी मासूमा ने भी याद किया है। आपको मालूम है कैसे याद किया है? अरे दो रिवायत मिलती है। एक रिवायत में है या बिंदा खुदीनी, अरे जैसे पसलियां टूटने लगी, मोमिन की शहादत बातें होने लगी, एक जुमला फरमाया बिंदा मुझे संभाल। लेकिन दूसरी रिवायत में है कि पसलियों को संभाला, जोर से फरमाया या मेहदियत आप में आंसू आ जाए दुआएं मांग लीजिएगा। बीबी सैयदा का मामला है, सब शहादत है। इमाम हसन भी आए होंगे, इमाम हुसैन भी आए होंगे, इमाम जमाना भी आए होंगे। रसूल खुदा आपके इकलौती बेटी का पुरसा देने के लिए आए हैं। या रसूल खुदा ये शहर भी कम नहीं है, बीबी सैयदा के मजालिस के बारे में पूरी दुनिया में जिक्र हो रहा है। यहाँ भी मर्दानी तनानी मजलिस हो रही है। हाय आज तो ये न कहा जाएगा कि बीबी सैयदा आई है, आज ये कहा जाएगा हसनैन आए हुए हैं, ला मेरी माँ का पुरसा। हाँ ये तो ऐसा लगता गया था ना कि अली के आंख में आंसू आकर्षण में शहादत है। थोड़ा सा इशारा करना है, शहादत पूरी नहीं बोलना लेकिन एक इशारा करना है कि मौला कायनात के आंख में आंसू आ गए। अरे अली जैसे ही दोपहर में आए क्या देखा, पूरा घर का आंगन साफ है, रोटी पक के रखी हुई है, अरे हजरैन के कपड़े धुले हुए हैं। एक मर्तबा करीब आए, अरे रसूल खुदा के इकलौती बेटी, अरे जरा ये बता दो आज तुम्हारी तबीयत इतनी अच्छी कैसे हो गई कि रोटी भी तैयार है, खाना भी तैयार है, हजरत का कपड़ा भी धुला हुआ है, अपने बच्चों को अपने हाथ से अपने बच्चों को खाना भी खिला रही है। कभी हसन को लुकमा, कभी हुसैन को लुकमा नहीं दे रही है, आखिरी दफा खाना देना है, अपने हाथ से अपने बच्चों को आखिरी दफा खाना देना है। अरे जैसे ही अली ने पूछा हाथ रोक लिया,
घर से बाहर निकालना था कि बच्चों में सामने लोग कब्र न हो। हाँ मेरा बेटा हसन बड़ा छोटा है, हाँ मेरा बेटा हुसैन अभी छोटा है, कैसे बर्दाश्त करेगा। अरे जैसे ही दोनों बच्चे बाहर गए, कहा जाके अपने नाना के कब्र पर मेरी सेहत के लिए दुआ करो। ये कह के जनाब अस्मा को बुलाया। अस्मा देखो मैं हुजरे में जा रही हूँ। इबादत करने के बाद जब तक मैं तस्बीह पढ़ती हूँ समझ जाना रसूल के इकलौती बेटी जिंदा है। जैसे ही आवाज रुक जाए मेरे लाशे पर आमद हो गई है। अगर आपकी आवाज बुलंद हो गई ना मासूम कबूल फरमा रहे हैं। तमाना तमाना आपके जनता की मजलिस हो रही है। इमाम हसन इब्न ज़ैनब अल्लाह अकबर। आपको मालूम है क्या हुआ? अरे बच्चे चले तो गए मैं कहूँगा, लेकिन बच्चे छोटे समझदार लोग थे, समझ रहे कोई ऐसा मामला है। माँ कभी भी मुझको ऐसे घर से नहीं बोलती है। अरे जैसे ही रसूल के सराहने पहुंचे कब्र रसूल हिली, कब्र से आवाज आई अरे फातिमा के यतीमों वापस जाओ, अरे फातिमा के यतीमों वापस जाओ, तुम्हारी माँ दुनिया में नहीं है। हसनैन दौड़े हुए आए। अस्मा ने कहा खाना खा लो। फरमाया क्या बगैर माँ के खाना देखा है खाते हुए? अरे दोनों हुजरे में गए। हसन ने अपने आप को गिरा दिया।